ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਡਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 234 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ 7 ਬੈਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, 152 ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ 3 ਬੈਚ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ 144 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 2 ਬੈਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਿੱਲ ਵਕਫ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਖਰ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਕਿਸਾਨ ਔਰ तमाम ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੱਤੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ तमाम ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਜੀਤੀ ਜੀ, तमाम ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਖੜਦੇ ਆ ਔਰ ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੁਕਵਾਉਣਾ ਪਵੇ LOP ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪਵੇ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ पहला भाईचारा निभाऊंगे। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ खड़े। मांग है कि उस बिल को वापस किया जाए। जब से देश आज़ाद हुआ है मुसलमानों के ऊपर काफ़ी हमले हुए हैं, कभी उनकी मस्जिदों पर, कभी उनकी खानकाहों पर या किसी भी चीज़ से, लेकिन मुसलमान उस चीज़ को बर्दाश्त करता हुआ गया। अब जब से ये BJP की सियासत आई है तब से जो है क्या हुआ कि उसमें जो है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग बढ़ी है और मुसलमानों की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है, लेकिन मुसलमान उसको बर्दाश्त करता रहा है। अब फिर क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने देखा है कि मुसलमान तो चुप है, अब उन्होंने सीधा हमला किया है हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर। वक्फ का मतलब क्या है कि ये वक्फ की हुई है, मुसलमानों के आबा व अजदाद ने इस ज़मीन को दान किया है, मुसलमानों को दी है।
अब मुसलमान इससे फ़ायदा उठा रहे थे। कैसे फ़ायदा उठा रहे थे कि हॉस्पिटलों की शक्ल में और मदरसे मस्जिदों की शक्ल में, दरगाहों की शक्ल में, इस तरह से फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट इसको हड़पना चाहती है। गवर्नमेंट ने देश की अन्य स्थानों को जो है हड़पा है। अब उसका इस चीज़ से पेट नहीं भरा तो उन्होंने क्या सोचा कि अब वक्फ की ज़मीन को हड़प लिया जाए। लेकिन हम इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे। वक्फ जो है हमारे जो है ईमान का मसला है, हमारे ईमान का मसला है। अगर हम इसमें दब गए तो फिर हमारा जीने का कोई हक़ नहीं है। तो इसलिए जो है हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि इस बिल को वापस लें, और अगर वापस नहीं लेंगे तो जैसे हमारे बड़ों ने इस देश के लिए आज़ादी दी है, हुकूमत को यही नहीं मालूम कि जिन मदरसों को हुकूमत बंद करना चाहती है, हमारे आबा व अजदाद उन्हीं मदरसों से पढ़े हुए थे और उन मदरसों से पढ़ करके देश में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। और अगर हुकूमत आज हमारे मदरसों को छीनना चाहती है और हमारे जो है ये हमारी औकाफ की ज़मीनों को हड़पना चाहती है, तो हम बता देना चाहते हैं जैसे हमारे आबा व अजदाद ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी थी, ऐसे ही हम इसके ख़िलाफ़ भी जंग लड़ेंगे और वक्फ बिल वापस करवा करके रहेंगे इंशाअल्लाह। बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम मदरसों को किसी भी तरह का परेशान नहीं कर रहे, और जो ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे करके बैठे हैं हम उनके लिए ये बिल आए। नाजायज़ कब्ज़ा कैसा है? अमित शाह ने जो है पार्लियामेंट के अंदर, मैं उस भाषण को सुन रहा था, चिल्ला करके बोला कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखा जाए अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की गेम के बीच में क्या होता है कि यूपी के अंदर 300 से ज़ायद औकाफ की प्रॉपर्टियों को डैमेज किया गया है। ये नाइंसाफ़ी हुकूमत हमारे साथ कर रही है। ऑर्डर आई कल, उसके बारे में जो है मैंने वो पढ़ा नहीं, तो उसके लिए अभी जी वो फाइनल नहीं हुआ। अभी वो फाइनल नहीं हुआ। आगे जैसे जैसे गाइडलाइन आती रहेगी हमारी आगे ना, वो एज पर इट जाओ, थोड़ा क्या कहना। मैंने अभी सोई आपको बोला है, मैं इसको आपके सवाल को पास करता हूँ क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं। पढ़ूंगा तो जरूर इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर इसके बारे में दे रहे हो ना, तभी तो नहीं। उसमें पेंडिंग है जी, जो आगे फैसला आएगा उसका बोल दो ना आप। हाँ पेंडिंग है, वो अभी पेंडिंग है जो उसमें जो है आगे आएगा तो हम इंशाल्लाह उसमें जो है बताएंगे, आपको ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। उसके बारे में आपको गाइडलाइन ज़रूर देंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये बिल पास किया, हमारी यही मांग है कि इसको वापस किया जाए। कितनी देर से यहाँ पे खड़े हो और कितनी देर यहाँ पे जाम लगेगा? जब तक कि हमारे बिल वापस नहीं हो, जब तक हम खड़े रहेंगे। हमारे बच्चे भी, हमारे सारा परिवार, हमारे कुराली वाले सारे मुस्लिम भाईचारे सारे खड़े रहेंगे। कि यह प्रदर्शन पूरे पंजाब में चल रहा है या कुराली में? प्रदर्शन पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है। इसमें मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो हमारा बिल ये ज़मीन का बिल पास किया है ये वापस किया जाए, बस यही डिमांड हमारे कोई कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है अभी इसका आपके हक में फैसला होगा? अगर हमारे हक में फैसला हो तो अच्छा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वक्फ बोर्ड की बिल जो पास हुई है इसको वापस सरकार ले, और ये हमारे पुरखों की दी हुई ज़मीन है। वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान, खानखाओं, मदरसा के लिए दी हुई चीज़ है, इसको सरकार वापस ले, नहीं तो हम इसके खिलाफ सरकार से लड़ेंगे। जिस तरह हम देश के लिए लड़े हैं इसी तरह हम सरकार से भी लड़ेंगे। हमारा मांग यही है कि वक्फ बिल का जो सरकार ने पास किया है ये उसमें दखल अंदाजी सरकार को देने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए हम लड़ेंगे, सरकार से लड़ता रहेंगे। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा हम सरकार से लड़ेंगे और आगे हम देखेंगे क्या करना है। कैसे लड़ोगे? लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, जो कानून के तहत से लड़ाई होगी उसके लिए हम तैयार हैं और लड़ेंगे। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। नहीं, हम उसको नहीं मानते हैं जी। सरकार की हर बात को माने, हमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन इस बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह हम देश के लिए हम जंग लड़े हैं, आज़ादी के टाइम अंग्रेज के खिलाफ हम जंग लड़े हैं, इसी तरह से हम सरकार से लड़ेंगे। जो कानून के संविधान के हिसाब से होगा उसी हिसाब से हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, और इस बिल को वापस लेना होगा। जब तक बिल वापस नहीं होगा हम चुप नहीं बैठेंगे। एक एक बच्चा इसके लिए हम लड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन इस बिल को वापस करा के ही रहेंगे। जब तक बिल वापस नहीं होगा हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे।